ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SPS ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਅਦਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਮੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਡਮ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਬੰਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨਮਸਤੇ ਮੈਮ। नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया बंसल, आई एम वर्किंग एज मतलब गायनोकोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर रही हूँ एट SPS हॉस्पिटल ओमेक्स। और आप लोगों को जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। और आई विल मतलब मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जो हैं जिनको जो भी डाउट्स हैं उनके क्लियर हो जाएं इस इंटरव्यू के थ्रू। तो मैम हमारा पहला क्वेश्चन है कि गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? गायनोकोलॉजिस्ट है एक्चुअली ये सिर्फ गायनाकोलॉजी नहीं है, इट्स ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स वो है कि जो प्रेगनेंसी से डील करते हैं, मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट से, वो भी हमारी ही ब्रांच है। मतलब वी आर बोथ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट। मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखता है और उनकी प्रॉब्लम से डील करते हैं, और गायनाकोलॉजिस्ट जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो यंग लेडी में हो या एल्डरली में हो, किसी भी मतलब हर एज ग्रुप में, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स से लेकर 55 से 60 ईयर्स तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़, स्पेशली प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, तो उन सब प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो मैम हमें ये बताइए कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिक टाइम कौन सा होना चाहिए जब उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी सेहत के बारे में बताना चाहिए, जहाँ उनके पास जाके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबको कोई टाइम है कि इस टाइम पे आकर हमसे मिलना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सब नॉर्मल है तो ठीक है। बाकी ये कि अगर जैसे 12 to 13 ईयर्स पे यूजुअली सबको पीरियड्स या मेंसेस जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो अगर उनको तब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तब वो आकर हमसे मिल सकते हैं। और तब से लेकर 55-60 ईयर्स तक जब मेंसेस बंद भी हो जाते हैं बट फिर भी कईयों को पीरियड्स की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो ये सारा एज ग्रुप में कोई भी किसी भी एज ग्रुप में आकर हमसे पीरियड्स के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, कभी भी जब भी आपको लगे कि हमें जाना चाहिए तो ज़रूर जाके दिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कोई ऐसी एज ग्रुप नहीं है कि इस पे नहीं आना, इस पे आना, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिसको जब प्रॉब्लम लगे, और अगर लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि टैम्पॉन्स वर्सेस कप्स को क्या प्रेफर करना चाहिए? देखो, टैम्पॉन्स और कप्स में टैम्पॉन्स का एक वो इंसर्शन का मेथड होता है और उसको मतलब रेगुलरली चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो
तो बेस्ट तो वैसे सैनिटरी पैड्स जो हैं वो ही बेस्ट रिकमेंडेड हैं, बट वो भी ये कि एकदम हाइजीनिक तरीके से आपको यूज़ करने हैं और रेगुलरली उनको 4 to 5 आवर्स के बाद चेंज करना है, इवन वो चाहे स्टेन्ड हैं चाहे नहीं हैं, बिकॉज अगर वो थोड़े बहुत भी स्टेन्ड होंगे तो भी बैक्टीरियल ग्रोथ का चांसेस तो रहते ही हैं। फिर भी मैम कितनी बार एक दिन में हमें पैड चेंज कर लेनी चाहिए कि हमारी हाइजीन बनी रहे? एक दिन में एटलीस्ट 6 आवर्स के बाद तो हमें पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। मतलब फिर आप लगा लो कि दिन में 3-4 पैड्स तो यूज़ करने ही चाहिए मिनिमम। बाकी ये है कि अगर ज़्यादा है फ्लो तो 2-3 घंटे में भी चेंज करना पड़ सकता है। अब ये भी नहीं है कि भरा हुआ है और फिर भी आपको ये है कि 6 घंटे के बाद ही चेंज करना है, तो एटलीस्ट 6 आवर्स तो है ये कि 6 आवर्स के बाद तो चेंज कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो मैम हमें ये बताइए कि जो प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं शॉप्स में बहुत मिलते हैं, वी वॉश और मैनी मोर, है ना, तो क्या ये हमारे हाइजीन के लिए सही हैं कि कुछ? हाँ बिल्कुल सही है। वी वॉश तो हम सबको रिकमेंड करते ही हैं जिनको भी इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है, मतलब जो आते हैं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है, तो वी वॉश हम उन सबको रिकमेंड करते हैं। ट्वाइस डेली यूज़ करना ही चाहिए वी वॉश फॉर हाइजीन। मैम जब मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेफ़ होती हैं कि नहीं होती? देखो, मेंस्ट्रुएशन में सेक्सुअल एक्टिविटी वैसे सेफ़ नहीं होती है और नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो आपका यूट्रस की जो माउथ है वो नीचे से खुला होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को प्रोन होता है। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हाइजीन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कई लेडीज़ तो शायद नहाती भी नहीं है कि पीरियड्स आए हुए हैं जी, नीचे हाथ नहीं लगाना, क्लीन नहीं करना, जो कि बहुत गलत है। मतलब इनफैक्ट जब पीरियड्स आए हैं तब तो चाहे 2 बार नहाओ आप, मतलब प्रॉपरली नीचे के एरिया को जैसे रेगुलरली क्लीन करते हो वैसे ही पानी और साबुन से क्लीन करना ही करना है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही मतलब वो जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, प्रोन होता है टू इन्फेक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन्फेक्शन से बचे रहें तो बेटर टू अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। मैम एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे जानना है आपसे कि जैसे मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, है ना, तो उसके बीच में कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं जो जब अगर हम हाइजीन ना रखें तो हमारी बॉडी को वुमेन्स को कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? देखो, इसमें अब मैं मेडिकल टर्म में बताऊंगी तो वही है कि PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। मतलब आपका सोजिश आ सकती है नीचे वाले सारे हिस्सों में ना, कि नीचे से इन्फेक्शन होकर पूरे आपके बच्चेदानी तक पहुंच सकती है इन्फेक्शन। और जब आप उस टाइम पे इंटरकोर्स करोगे तो फिर तो और भी ज़्यादा रिस्क है आपको ना। तो इसलिए ही कहते हैं कि इंटरकोर्स के मतलब मेंसेस के टाइम पे इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की पीरियड होता है इन्फेक्शन के लिए। तो सोजिश आ सकती है नीचे आपके यूट्रस के माउथ पे, फिर माउथ से चल के ऊपर बच्चेदानी तक पहुंच सकती है, फिर बच्चेदानी से आगे अंडेदानी और ट्यूब्स जो हम कहते हैं ना, उन तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए बेटर टू अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी, टू अवॉइड ऑल दिस, ये सब इन्फेक्शन से बचने के लिए। जैसे आजकल हम एक टर्म बहुत सुन रहे हैं, PCOD। इंस्टाग्राम पे जो लोग देखते हैं, हम भी रील्स देखते हैं तो उसमें PCOD की प्रॉब्लम है ना, ऐसा बहुत चल रहा है। क्या है ये PCOD? PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, फुल फॉर्म इसकी ये है। यूजुअली ये यंग जो गर्ल्स होती हैं या स्पेशली जो मतलब बच्चा करने वाली जो एज ग्रुप होती है, मतलब 15 से लेकर 35-40 तक ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये जो भी लेडीज़ जो थोड़ा वेट गेन कर लेती हैं तो उसमें हार्मोन इरेगुलरिटी हो जाती है। तो हार्मोन्स ख़राब होने के कारण क्या होता है कि जो अंडेदानी होती है वो अंडा निकाल नहीं पाती और वो फूलने लग जाती है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पानी के जैसे कहते हैं ना, पानी के गुब्बारे टाइप से बन जाते हैं, उनको सिस्ट बोलते हैं। तो वो बन जाते हैं जिससे ओवरीज फूल जाती हैं और अंडा अपने टाइम पे सही नहीं निकाल पाती। इस कारण पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं, और जो कंसीव करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनको भी दिक्कत आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए अंडा तो सही बनना ज़रूरी है ही है। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम्स है जो उनको आती हैं। बाकी ये है कि और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं इससे रिलेटेड, और सबको लगता है कि हाँ हमारा मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे इसलिए वज़न बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में ये मतलब एक साइकिल है कि आपका वज़न बढ़ता है तो हार्मोन्स ख़राब होते हैं और पीरियड्स नहीं आते, फिर उससे और आपका वज़न बढ़ेगा, फिर और आपके पीरियड्स डिले होंगे। मतलब इसलिए इसके लिए वज़न कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बेस्ट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव?
देखो बेस्ट मेथड जो है वो वैसे तो विद एज ग्रुप वो डिफ़र करता है कि हाँ जो यंग कपल्स हैं जिनको अभी बच्चा नहीं हुआ है एक भी, उनको क्या मेथड यूज़ करना है वो अलग है, और जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए अलग है। तो जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और उनको बिल्कुल और बच्चा नहीं चाहिए तो उनके लिए तो कॉपर टी जो है वही बेस्ट मेथड है। वैसे सबसे बेस्ट तो यही है कि आप मतलब ट्यूब्स बंद करवा लें, अगर वो तो सबसे बेस्ट है ये, वो पर परमानेंट मेथड है कि उसके बाद फिर आप बिल्कुल भी नहीं बच्चा कर पाओगे। और अदरवाइज़ डे टू डे रूटीन में कॉपर टी बेस्ट है। 5 to 10 ईयर्स की 10 ईयर्स वाली भी होती है तो उसके बाद आप निकलवा कर फिर दोबारा भी डलवा सकते हैं। तो कॉपर टी बेस्ट मेथड है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिनको अब और कंसीव नहीं करना है। और जो यंग कपल्स होते हैं उनके लिए? यंग कपल्स के लिए तो फिर ओसी पिल्स, जो गर्भ निरोधक गोलियां जिनको हम कहते हैं ना, तो वो ही बेस्ट है, क्योंकि यंग कपल्स में कॉपर टी हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो बेस्ट मेथड है, ओसी पिल्स। और मैम जो पिल्स ली जाती हैं, पिल्स लेने का करेक्ट कुछ होता है हिसाब कि नहीं? नहीं, हिसाब तो होता ही है कि जब आपको पीरियड आता है, पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट करना होता है उनको। 21 डेज़ के लिए प्रॉपर लेना होता है लगातार विदाउट मिसिंग अ पिल, क्योंकि अगर जैसे ही आप पिल मिस कर देते हो तो फिर आपका प्रेग्नेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई पिल मिस नहीं करनी होती, सेम टाइम पे लेनी होती है, डेली प्रेफरेबली। ठीक है, और 21 डेज़ का अपना पूरा कंप्लीट साइकिल करके फिर उसमें 7 आयरन की टैबलेट्स होती हैं गैप देने के लिए, जिसमें आपके पीरियड्स आ जाएं, वो 7 डेज़ करके फिर अपने ही टाइम पे बस जैसे ही वो कंप्लीट होता है फिर आपने फिर नेक्स्ट पैक शुरू कर देना है। मिस नहीं करनी है पिल, मेन तो इसका यही है वो है, और डे 2 ऑफ पीरियड से ही स्टार्ट करनी है। तो मैम इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे पिल्स लेने के? हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट हाँ कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए उसके और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है बॉडी पे, फिर लोग एबॉर्शन के लिए पिल्स खाते हैं, वो ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट वो बहुत कम केसेस में होते हैं। जैसे थोड़ा वेट गेन हो गया, ब्रेस्ट में हैवीनेस हो गई, थोड़े बहुत पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ये साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली 2-3 मंथ्स के लिए लास्ट करते हैं और फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं, अपने आप ही बॉडी अडेप्ट हो जाती है पिल्स को। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि थोड़ा बहुत 1-2 कैंसर्स हैं जो ओसी पिल्स, वो भी ये कि अगर हम 5 साल से ज़्यादा यूज़ करें, मैक्सिमम टाइम जो होता है ओसी पिल्स देने का वो 5 ईयर्स ही होता है, उससे ज़्यादा हम लोग देते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद ही उसके मेजर साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद हम लोग रिकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि इसीलिए हम यंग कपल्स में देते हैं कि जिनको कंसीव करना है अभी, तो 1-2 साल वो ले सकते हैं। एल्डरली कपल में हम लोग जो फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए उनमें हम ओसी पिल्स प्रेफर ही नहीं करते, उनमें हम कॉपर टी ही यूज़ करते हैं इसीलिए। एक मैम बहुत सुना है कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्या है ये? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यही है कि अगर बाय चांस आपने इंटरकोर्स कर लिया है, मतलब संबंध बना लिया है अपने पार्टनर से बिना प्रोटेक्शन के, और आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट ना हों, तो फिर हम यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन तो आई पिल ही है, तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी है, ओवर द काउंटर ड्रग है, और विद इन 72 आवर्स मतलब विद इन 3 डेज़ आपको वो लेना होता है, क्योंकि अगर उसके बाद आप एक्सीड करोगे, वैसे 1 वीक तक भी होता है इसका पीरियड, बट फिर उसकी इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो विद इन 3 डेज़ आपको जस्ट एक सिंगल पिल है वो यूज़ करना है, और एटलीस्ट आप फिर वो प्रेगनेंसी और एबॉर्शन पिल लेने से तो बेटर है कि आप ये, वैसे ये कि ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड नहीं है कि हाँ आप हर बार ही ऐसे करते रहो कि हाँ आप मतलब इंटरकोर्स कर लो विदाउट प्रोटेक्शन और फिर ये पिल ले लो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, वो भी सेफ़ नहीं है बॉडी के लिए। तो ये जस्ट ये है कि हाँ कभी आप 1 ईयर या 2 ईयर बस इतना ही इनको यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए इनको। मैम एक अबॉर्शन पिल्स भी बहुत चलती हैं, तो उसका क्या हिसाब है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो, एबॉर्शन पिल प्रेफर तो यही करना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करो, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो ही नहीं। बेस्ट तो वही है, बट अगर हो गई है और किसी को लेनी ही है तो फिर तो लेनी ही पड़ेगी, अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादा अगर किसी को लग रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो क्या कर सकते हैं, फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ले लें, बट ज़्यादा इनका प्रॉपर तरीके से इसको लेना भी ज़रूरी है। मतलब
आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलकर प्रॉपर पहले अल्ट्रासाउंड करवा कर, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी की जगह ट्यूब में भी ठहर जाती है, तब अगर हम ये ले लें अबॉर्शन पिल तो वो बहुत रिस्की हो सकता है, ट्यूब फटने का भी खतरा है। तो इसलिए हमेशा एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर और अल्ट्रासाउंड कराकर फिर ही अबॉर्शन पिल लेना चाहिए। मैम जो सी लड़कियों को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट है कि या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मतलब कि पीरियड्स नहीं आने दे रही, कुछ उसके बारे में बताइए। देखो जब पीरियड स्टार्ट होते हैं 11-12 ईयर पे तो 1-2 साल तो मेडिकल साइंस ही कहती है कि पीरियड्स इरेगुलर ही रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली आपका ओवरीज अंडेदानी से अंडा नहीं बनता है, तो 1-2 साल पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया है ये जंक फूड के कारण, और वेट मतलब ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है, मतलब लोग मोटे इतने हो रहे हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि उससे फिर यंग एज ग्रुप में भी पीसीओडी का वो हो रहा है, रिस्क हो रहा है, मतलब 13-14 साल की लड़कियों को पीसीओडी निकल के आ रहा है। ये जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, सब जंक फूड खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो इसलिए अपना पहले से ही वो कंट्रोल रखना चाहिए, अपना कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट कम लेनी चाहिए, ये जंक ऑयली पराठा घी तेल ये सब कम रखना चाहिए, और अपना वेट नॉर्मल लिमिट्स में रखना चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होना चाहिए पीसीओडी को अवॉइड करने के लिए। मैम एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर टेस्ट, वो क्या है, उस टेस्ट क्या है, मतलब कुछ बताइए। देखो पैप स्मीयर टेस्ट ये है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, जो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, तो उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए होता है ये टेस्ट। ये हम रूटीनली रिकमेंड करते हैं कि एवरी 3 इयर्स हर लेडी को 30 इयर्स के बाद ये टेस्ट करवाना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा टेस्ट है, जस्ट एक स्मीयर मतलब एक जांच है, 2 मिनट हार्डली लगते हैं इसमें ओपीडी में आकर। तो इसमें ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं भी है ना, ये उन्हीं के लिए, देखो जिनको दिक्कत है उनकी तो बायोप्सी वगैरह वो तो दिखाने आएंगी ही आएंगी, है ना, पर जिनको दिक्कत नहीं है उनको रूटीन में ये करवाना चाहिए हर 3 साल के बाद, ताकि अगर उनको ताकि अगर आगे जाके कोई रिस्क है भी है तो वो जल्दी पता चल जाए उस टेस्ट के थ्रू। जैसे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, शेव और वैक्स, क्या प्रेफर करेंगे? देखो वैक्सिंग में तो अब वही है कि हाइजीनिक तरीके से तो नहीं होती है, सबके लिए वही कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो लोग, है ना, तो मतलब अपने आप शेव करना और ट्रिम करना वो सर्टनली बेटर है फ्रॉम वैक्सिंग। लास्ट 2 क्वेश्चंस मैम, राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी। राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी आजकल तो मैरिज ही लोग इतनी लेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अप्रोप्रिएट एज जो है प्रेगनेंसी की, दैट इज़ बिटवीन 25 to 30 ईयर्स, क्योंकि उसके बाद फिर आपका ओवरीज में जो अंडा बनने की कैपेसिटी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है विद एज, स्पेशली 30 ईयर्स के बाद या 35 पर तो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए 25 to 30 ईयर्स के बीच में दैट इज़ द बेस्ट एज। ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपका यूट्रस इतना वो नहीं होता, बच्चेदानी इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो होल्ड कर सके, और अच्छे से आपकी बॉडी इतनी वो नहीं होती कि हाँ कि वो सस्टेन कर सके प्रेगनेंसी को। तो 25 to 30 ईयर्स इज़ द बेस्ट एज फॉर प्रेगनेंसी। मैम ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गुड फॉर मदर और नॉट? ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फॉर मदर एज वेल एज़ फॉर बेबी। ठीक है, बेबी को तो इतना न्यूट्रिशन मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से, मतलब न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, वो शायद आपको फार्मूला मिल्क से भी मिल जाएगा, बट बेस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ जो मिलती हैं मदर के मिल्क से, वो तो आपको फार्मूला में भी नहीं मिलेंगी। और जो एक बॉन्डिंग होती है मदर और बेबी के बीच में, वो डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग से ये है कि मदर जो है वो मतलब प्रेगनेंसी से भी बच सकती है, ये भी फ़ायदा हो जाता है मतलब मदर्स को, कि इतना जल्दी वो प्रेग्नेंट भी नहीं होती फिर दोबारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग तो बेस्ट है फॉर मदर एज वेल एज़ फॉर द बेबी, दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जो मैम गर्ल्स, यूथ, एल्डर्स जो आपको देख रहे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि हाइजीन के रिगार्डिंग, जहाँ कुछ भी आप बताना चाहें उनको? बिल्कुल, पर्सनल हाइजीन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधी से ज़्यादा बीमारियां हाइजीन से ही ठीक हो सकती हैं, स्पेशली जैसे अभी पहले भी मैंने बताया, स्पेशली एट द टाइम ऑफ पीरियड्स हाइजीन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये मिथ है ना कि पीरियड्स हैं तो नहाना नहीं है और ये सब नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म कर दो। इनफैक्ट 2 बार नहाओ, प्रॉपर उस एरिया को नीचे से क्लीन करो, वॉश करो, और अपना रेगुलरली पैड्स चेंज करो, ताकि आपको वो जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उस सब से, इन्फेक्शन से बचने का आपका सही रहे, कोई आपको रिस्क ना रहे उस सब का।